Afternoon, gentlemen. I am Major General Dr. Shripal speaking from Bunkerman House, D68 east of Kailash, New Delhi. Today, we are lucky here to have with us our two very prominent guests. First one is Mr. Pramod Pungaonkar. He is an expert in heating, ventilation, and air conditioning, and he is also the president of ISRE Kolhapur chapter. Now, recently I had an opportunity to have interaction with him at a conference in Shivaji University, Kolhapur, that a national conference on HVAC, environment protection, was organized by Shivaji University and ISRE chapter of Kolhapur. They invited me. I presented the paper on Bunkerman technology, and which I was very thankful, which was appreciated in that national seminar. And today has come with this keen interest of visiting the Bunkerman technology. So welcome to this place, Mr. Pungaonkar. And Mr. Pungaonkar is also the National Senior Vice President of Refrigeration, Air Conditioning Servicing Sector Society. This is also another society which is doing lot of work in our country for refrigeration, air conditioning and modern technologies with us. We also have another guest with us, Mr. Pawan Nagi. He is also an expert in heating, refrigeration and air conditioning, and he is also a computer engineer, IT experience, qualified, and he is the president of Delhi chapter of RASSS, that is Refrigeration and Air Conditioning Servicing Sector Society. Now he also owns a company, ML Innovations, which is dealing in solar systems and commercial refrigeration systems. So welcome to Bunkerman House, sir, today, both of you. So much. Now today I have explained you have seen the equipment of Bunkerman technology, and our aim of using this technology in India is that we want this technology, which was very costly earlier, as I explained you, this CO2 removal system, not only in India but in the entire world. Most of the countries are using it only in three types of projects. One is space missions, second is underwater submarines, and underground nuclear bunkers. So because of these reasons, the technology was very costly. But after second wave of corona, which we experienced recently in India, I thought that this technology, if it can be made slightly affordable by common man, then there is a need of using this technology by even civil population, common man of our country. So I have made some R&D, I have carried out some R&D in my company at Baddi, and today we are able to reduce the cost of this system from crores of rupees to only few lakhs of rupees. And our aim is that with government support, the cost can further be brought down, and this technology can be made affordable by common man of our country. So let us see how we proceed in our mission. So now, since you have seen the system, you have also seen it working. I have also explained to you what is normal mode, what is button up mode, and what is our concept of using this technology as an emergency home in case of any natural disaster or even in any nuclear, biological, chemical disaster. So here we would like to get educated from your vast experience in this field, and kindly suggest what modifications we can do if something is required to be done, or educate us that how to spread this technology, because our aim is to spread the education and awareness about this concept that indoor air quality is found more toxic than outside air. Pollution in environment is increasing day by day. Despite all efforts being made by our government and by societies like yours, this rising graph of CO2 in environment is not stopping. It is still continuously increasing. So I personally feel that with the use of this Bunkerman technology, we can arrest this rising trend of CO2 and greenhouse gases in the atmosphere, and we can not only stop this rising trend, but we can reverse this trend with this particular technology, because this direct carbon capture
with negative cost, which we have demonstrated in front of you. By integrating it with the centralized AC systems, we can even reduce the power consumption of AC plants by more than about 50%, as you have seen. So kindly offer your comments, sir. Firstly, Mr. Pungaonkar, would you like to say a few words in this? Yes, sir. Yeah. You can speak in English or Hindi. नमस्कार। एक तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो पहली बार मैंने आपसे देखी है, सुनी है, और आज दिल्ली में आके अपना जो पूरा मॉडल्स है वो देखने को आपने हमें मदद की है। इसलिए हम आपको हमारे इशरे कोल्हापुर चैप्टर और रास की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू। एक तो मैंने जो ये जो इक्विपमेंट देखा है उसमें सिंगल यूज, मतलब सिंगल आदमी के लिए भी अलग सिस्टम है, और जितने आदमी बढ़ जाएंगे वो मॉडल अपने बनाए हैं। तो अगर मैं अकेला रहता हूँ तो मेरे लिए क्या चाहिए, मेरी फैमिली है तो क्या चाहिए, और फिर उसके बाद मेरा कुछ ऑडिटोरियम है या होटल है, मैं जहाँ पे एयर कंडीशनिंग का काम करता हूँ, उसके लिए वही कौन सा एयर क्वालिटी चाहिए, ये AQI बोलते हैं। ओके। तो उसके लिए मैं पहले वही का डेटा लूँगा, आपको हम लोग उसका डेटा पूरी तरह से दे देंगे। तो उसके हिसाब से आपके जितने भी मैंने मॉडल देखे, कम से कम 20 मॉडल तो आपके पास है। एकदम 75 पीपल जो ICU में बेड है उसके लिए भी अलग मॉडल है, और सिंगल आदमी रहता है वो भी मॉडल मैंने देख लिया। थैंक यू। तो ये एक अच्छी बात है कि स्टैंडर्ड मॉडल कोई नहीं है, आपके रिक्वायरमेंट या तो कस्टमाइज जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाए हैं। करेक्ट। ये तो बहुत बढ़िया है। दूसरे जो मैंने देखा कि ये दो मॉडल है जिसमें ऑक्सीजन भी बटन मोड में जो ऑक्सीजन है, बटन मोड में भी ऑक्सीजन है। उसकी जरूरत तो पहले हमें कोरोना के कार्यकाल में चाहिए थी, वो आपने अभी आगे आने वाले कोई भी डिसीज है उसके लिए बनाई है, वो भी बहुत अच्छा इनोवेशन है। अभी आपने और भी एक बोला कि कभी न्यूक्लियर अटैक हो जाता है या और भी कोई युद्ध हो या तो बैटल हो, तो उस टाइम अगर हमें घर के बाहर नहीं निकलना होता है तो उसी टाइम भी हम लोग घर के अंदर सेफ रह सकते हैं। वो एक अच्छा मॉडल है आपका। उसके बाद हम जैसे पहले से देख रहे हैं कि एयर कंडीशन का लोड, हम लोग खाली अंदर का हीटिंग लोड या सनरेज का अंदर आने का लोड या ट्रांसपेरेंस जो वॉल है, सीलिंग है, वो देखते थे। लेकिन अंदर जो हम लोग जो CO2 क्रिएट कर रहे उसके उस ऊपर कभी हमने ध्यान नहीं दिया। अगर वो CO2 हम लोग कम कर पाएंगे तो जैसे आपने बोला कि 30% से 60% हम लोग उसको हीटिंग लोड एयर कंडीशन के ऊपर का कम कर सकते हैं। करेक्ट। अगर डिजाइन स्टेज में अपने को पता लगेगा कि ये हॉल में इतने आदमी आने वाले हैं तो उनका CO2 जितना जनरेट होने वाला है वो मॉडल आप लोग डिजाइन करके वो उसी के हिसाब से डिजाइन करते हैं। उसी के हिसाब से आप करेंगे। 100 टन का अगर कैपेसिटी इन जनरल लगने वाला है वो आप 70 टन में उसको कंप्लीट कर पाएंगे। बिल्कुल 25 से 30% की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है रिड्यूस हमारे हो डिजाइन जाएगी के साथ, आपके डिजाइन के साथ। सर। उसके बाद भी अगर वही पे लोड जितना कम ज्यादा है उसी हिसाब से जो 70 टन का एयर कंडीशन लगाया वो भी हम लोग कम ज्यादा कैपेसिटी के ऊपर चला पाएंगे। ठीक है। तो वो भी कम है। अभी आप जितने भी इलेक्ट्रिकल लोड या तो किधर भी बिल्डिंग में देखा जाएंगे तो एयर कंडीशन का लोड 60 to 70% इलेक्ट्रिसिटी लोड एयर कंडीशनिंग का या रेफ्रिजरेशन का रहता है। वो अगर हम लोग कम कर पाएंगे तो बिजली बनाने के लिए जो कोयला या जलाते हैं या फॉसिल फ्यूल बोलते हैं वो पहले से कम हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी। या तो जिधर इलेक्ट्रिसिटी कम होती है उनको हम लोग दे पाएंगे। वो भी एक जनरेशन ही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। हम लोग 1 यूनिट अगर बचा पाएंगे तो 2 यूनिट हमने जनरेट किया, ऐसा एक थंब रूल है। करेक्ट। उसमें भी आपकी मशीन अच्छी काम करेगी। और मेन है वो जो अपने हेल्थ के लिए क्या चाहिए
वो आपने ए मशीन से पूरे के पूरे इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। कर लिया है। वोलाटाइल ऑर्गन से रहने दो या मोल्ड रहने दो या SO2 O3 ये जितने भी पैरामीटर अभी पहले नहीं देखा जाते थे वो अभी आपने इधर दिखने चालू कर दिए। तो मेरे ख्याल से ये मशीन सबको लेनी चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे, हमारे टेक्नीशियन पूरे भारत में काम करते हैं, उनकी तरफ से आपको हम लोग लीड दे देंगे। हमारे जो टेक्नीशियन है वो सबसे ज़्यादा होम अप्लायंसेस मतलब एयर कंडीशन ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, कोई भी मशीन जो घर में यूज होता है उसके बारे में सर्विसिंग का काम करते हैं। और हमें जितना भी मालूम है वो आपकी मदद से हमारे जो टेक्नीशियंस है उनको देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा आपने बोला। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करती है नॉर्मल मोड में, नॉर्मल आदमियों के लिए हम इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं मिनिमम लेवल ऑफ CO2 600 ppm 600 ppm, मैक्सिमम 800 ppm। तो 800 ppm पे फिल्ट्रेशन करना शुरू कर देती है और 600 पे आके बंद हो जाती है नॉर्मल आदमी के लिए। लेकिन जो घर में पेशेंट्स हैं, कोई जैसे अस्थमा के पेशेंट्स हैं या ओल्ड कपल हैं, पीपल हैं या इन्फेंट्स हैं, तो उनके लिए ये लिमिट और भी लोअर करते हैं, क्योंकि एक इंडियन स्टैंडर्ड है IS 15879, वो स्पेसिफाई करता है कि पेशेंट्स के लिए जो ब्रीदिंग ऑक्सीजन है या ब्रीदिंग एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी 500 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 800 लिमिट ही हमने हेल्दी आदमियों के लिए रखी है, नॉर्मल पेशेंट्स के लिए। तो उसमें हम सलाह दे रहे हैं कि डॉक्टर की सलाह लेकर के उसमें आप CO2 की लिमिट को 300 और 500 कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 300 और मैक्सिमम 500। तो उस केस में ये CO2 कंटेंट उस कमरे के अंदर 500 ppm से ज़्यादा नहीं जाने देगा अगर कोई पेशेंट्स हैं या ओल्ड पीपल हैं या इन्फेंट्स हैं, क्योंकि इन्फेंट्स के लंग्स थोड़े ज़्यादा नाजुक होते हैं। क्योंकि देखिए भगवान ने तो हमको दिया था CO2 लेवल धरती पर 280 पार्ट्स पर मिलियन, तो हेल्दी एयर तो एक्चुअली तो 280 पार्ट्स पर मिलियन ही है, इसके ऊपर 400-500 भी आइडियल नहीं है। तो इसलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं और अपने यूजर्स को बता रहे हैं कि जो आपके पास अगर इन्फेंट्स हैं या बूढ़े लोग हैं या कोई बीमार हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनको तो और भी अच्छी हवा चाहिए, ब्रीदिंग एयर, ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा हो, CO2 कम हो। तो उसमें डॉक्टर की सलाह पे हम कह रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी आप 300 मिनिमम, मैक्सिमम 500 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी है। तो वो प्रोविज़न भी इसमें है। दूसरा एक असर और पड़ता है इसका CO2 कंटेंट का, उसको क्या कहते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स। अक्सर हमने पाया गया है कि जहाँ CO2 कंटेंट 800, 1000, 1500 ppm पहुँच जाता है, जैसे क्लासरूम का हमने कुछ सर्वे किया है कुछ क्लासरूम में, वहाँ स्टूडेंट से मैंने फीडबैक ली है, टीचर से फीडबैक ली है। वो कहते हैं कि साहब जैसे CO2 बढ़ जाता है, 25-30 स्टूडेंट एक कमरे में होते हैं और वेंटिलेशन अगर नहीं है तो 1500, 2000, 2100 ppm तक पहुँच जाता है। कई यूनिवर्सिटी में मैंने खुद रिकॉर्ड किया है 2400, 2500 ppm तक भी पहुँच जाता है बंद कमरों में। तो उसमें जो स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव पावर कम हो जाती है, एसिमिलेशन पावर कम हो जाती है। पहले 15 मिनट स्टूडेंट जो है अटेंटिव रहेंगे, फिर उनको नींद आनी शुरू हो जाती है, जम्भाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं। और टीचर्स ने भी यही कंप्लेन किया कि साहब ये पाया गया है अक्सर, जब हम अगर 1 घंटे का हमारा लेक्चर है, पहले 10 मिनट 15 मिनट बड़े ध्यान से सुनते हैं लोग, उसके बाद फिर हमें जगाने पड़ते हैं कि अरे क्यों ऊँग रहा है, सीधे हो जाओ। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्टिव है। तो इसमें अमेरिका में भी कुछ स्टडी हुई है, हमारे पास कुछ लिटरेचर हमने शेयर भी किया है ग्रुप में, अवेयरनेस प्रोग्राम में, कि कॉग्निटिव स्किल्स अगर सही रखनी है तो उसके लिए है क्लासिफिकेशन है इसमें, ग्रीन प्लस इज अराउंड 300 ppm, कि CO2 लेवल 300 ppm के आसपास है तो वो ग्रीन प्लस बिल्डिंग है, ग्रीन प्लस इंडोर एनवायरनमेंट है। 300 से 5 तक है वो ग्रीन, उसको कहते हैं। 500 से नीचे ही रहना चाहिए ग्रीन, और 500 से ऊपर वो येलो आ जाता है और फिर रेड आ जाता है। तो 800 से ऊपर तो रेड ही है, तो वो होना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज हेल्थ भी आपकी अफेक्ट होगी, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स भी अफेक्ट होंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये मैं आपको ब्रीफिंग में बताना भूल गया था, अभी मैंने बता दिया है। और अभी मैं मिस्टर पवन नागी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने इनके भी विचार सुने हैं, अभी प्रमोद पंगावकर साहब के भी, और आप दोनों लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, क्योंकि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से आप आए हैं। एक तो है ISRE, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। ये इंडिया की ऐसी सोसाइटी है, जैसे अमेरिका की है ASHRAE, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग, एयर कंडीशनर्स, तो ऐसे ही इंडिया की सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। उसके कोल्हापुर चैप्टर से
तुम गांवकर साहब आए हैं, और इसी के जैसी एक सोसाइटी है जिसको राष्ट्र बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सर्विसिंग सेक्टर सोसाइटी। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी हैं जो पर्यावरण में हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग में, इंडोर एयर क्वालिटी सिस्टम्स में डील करती आ रही हैं। और आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहा है सोसाइटी के अलावा भी, आप बिजनेस में हैं ऑलरेडी, इसमें आपने कई प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट किए हैं। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि बंकरमैन टेक्नोलॉजी आपके विचार से क्या यूज़फुल टेक्नोलॉजी है, ये कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगी एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन में, या आपकी सोसाइटी के लिए ये मददगार होगी? तो इसके बारे में मैं आपसे 2 शब्द सुनना चाहूँगा। तो ओवर टू मिस्टर पवन नागी। Yeah, thank you so much, sir. And first of all, I would like to thanks to you to introducing this, technology to a common man. So as you said previously, it was only for the 3 sectors, which I suppose satellite, submarine, and all these things. Now, if we are bringing this technology to a common man, is a great initiative to bring this technology to a common man. ओके, So, आपने टेक्नोलॉजी की पूरी हमने डिस्कस किया, आपने प्रमोद जी ने एक्सप्लेन किया, आपने ब्रीफ किया, समझा हमने टेक्नोलॉजी को, बट आई वुड लाइक टू टेक माई थिंग टूवर्ड्स द अवेयरनेस प्रोग्राम। ओके, सो अभी तक ना CO2 किसी का ध्यान ही नहीं गया CO2 की तरफ। हम लोग आजकल एक बहुत सारे कॉमन कीवर्ड्स हैं जिन पे बातचीत चलती रहती है, लोग गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है उन काम पे, क्लाइमेट चेंज है ना, नेट जीरो एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट, नेट जीरो टुवर्ड्स नेट जीरो, मूव टुवर्ड्स नेट जीरो। हम लोग इस पे काम कर भी रहे हैं इफेक्टिवली, बट जो रिजल्ट हमें चाहिए, जो एक्चुअली रिजल्ट हमें चाहिए, वो रिजल्ट नहीं आता इससे। अभी आपने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि पर मैन एक ट्रीज की भी नंबर्स हैं जो हमें देखने होते हैं, और हमारा उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया आज तक। करेक्ट। पर पर्सन हमें अगर एवरेजली, मतलब मैं अगर अक्रॉस द ग्लोब बात करूं तो पर पर्सन 422 ट्री चाहिए, और हम 28 ट्री पे बैठे हैं। इंडिया सिटिंग ऑन पर पर्सन 28 ट्रीज। अब ऐसा भी नहीं है कि हम 422 ट्री का टारगेट लें और 422 ट्री लगा दें, क्योंकि हमारे पास लैंड ही नहीं है इतना। लैंड नहीं है, प्लस टाइम भी लगेगा, क्योंकि एक पेड़ को 10 से 15 साल लगते हैं। एक पेड़ को अगर आज आप लगाओगे 10 से 15 साल बाद वो इस लायक होता है कि 17 पेड़ एक आदमी को कंपनसेट कर सके। तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आज ही लगाइए, आज से ही काम करना शुरू कर देती है। आप देखिए कितना बड़ा गैप है पर पर्सन 422 ट्रीज लगाने में और उसको अचीव करने में। तो वो जो अचीवमेंट अगर आज आप, मतलब आप विद इन अ सेकेंड्स अगर आप कर दें, तो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। आई वुड रियली थैंक टू यू। मेरा थोड़ा पैशन रहता है और मैं थोड़ा अग्रेसिवली काम करता हूँ एनवायरनमेंट की तरफ। मेरा ये मतलब मेरा कोर वो थोड़ा पैशन है मेरा ये। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। मतलब मेरे एक सोच है कि जाने से पहले इस धरती को जीने लायक तो छोड़ दो कि हमारी जनरेशन जी सके। हम ऐसा ना करके जाए कि हमारी जनरेशन जी ना सके। करेक्ट। तुम क्या करके जा रहे हैं इस धरती को? तो एक तरीका है, शुरुआत है हमारी तरफ से, एक कोशिश है करने की, पर इस कोशिश को कामयाब करने के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग टेक्नोलॉजी बन गई है। फॉर्चुनेटली कॉस्ट भी इसकी अफोर्डेबल रेंज में आ गई है, जो कि करोड़ों रुपए में कॉस्ट थी। करोड़ों रुपए आम आदमी नहीं खर्च कर सकता था, लेकिन आज इसकी कॉस्ट अगर हम 50,000 रुपये पर पर्सन पे ले आए हैं, उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट मिले तो आम आदमी के लिए और भी सस्ता हो सकता है। तभी इसकी ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड होगी पूरे इंडिया में। और आपकी सोसाइटी के थ्रू, आपके थ्रू मेरी यही गुजारिश है कि सबसे पहले इसकी अवेयरनेस आम पब्लिक में मैक्सिमम पहुंचानी जानी चाहिए। आज जैसे रास चैप्टर के, रास एसोसिएशन के हर स्टेट में चैप्टर हैं, और हमारे आज करीब क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है तो हम लोग ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए लोग साथ में, तो हम पूरा सहयोग करेंगे आपको। हम really completely supporting you for awareness, any kind of awareness program you want to run across the India. So we can organize road shows, offline road shows. We can organize webinars, online webinars. Whatever, which kind of support you need, we are always with you. चलिए, थैंक यू वेरी मच मिस्टर नागी। हमारा भी एम यही है बंकरमैन का कि ये टेक्नोलॉजी कॉमन मैन के पास जाए। सबसे पहले जो इंडियन सिटीजन है वो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी हवा लें, ब्रीदिंग एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो, इंडोर एयर क्वालिटी जो ज़्यादा कंसर्न है आजकल वो इम्प्रूव हो, और साथ ही साथ बाहर का वातावरण भी शुद्ध हो। जो ये राइजिंग टेम्परेचर है या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है,
इसी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम में उथल पुथल मच रही है। इसको रिमूव करने का यही एक कारगर तरीका है कि जितनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका लेवल एनवायरनमेंट में कम किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इसका यही है कि एक आदमी या 10 आदमी 20 आदमियों के करने से काम नहीं चलेगा। ये टेक्नोलॉजी पूरे इंडिया में हर इंडिविजुअल को अपनानी पड़ेगी, और इसीलिए जो हमारी पॉपुलेशन है जिसको हम लाइबिलिटी समझते हैं उसको हमें एसेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे मैंने आपको समझाया था कि आगे आने वाले कुछ ट्रेंड इस तरह से हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है और इंडिया में बहुत फास्ट तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट रुकेगा नहीं, आगे और डेवलपमेंट होना है। जो सड़कें हैं वो और ज़्यादा बननी है, जो बिल्डिंग है और ज़्यादा बननी है, कारें बढ़नी हैं, एयर कंडीशनर्स बढ़ने हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी की ऐसी की ज़रूरत है कि इन सब के बढ़ते हुए चीज़ के साथ टेक्नोलॉजी भी हमारी एनवायरनमेंट को ज़्यादा क्लीन करे, पोल्यूशन लेवल को कम आए। तो ये बंकरमैन का कॉन्सेप्ट इसी लेवल पर हमने शुरू किया है। ये मैन बेस्ड है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना अच्छा इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, जितनी ज़्यादा बिल्डिंग बनेगी, उतने ये सिस्टम भी लगेंगे बिल्डिंग में, तभी ये सिस्टम कंट्रोल होगा। और मुझे खुशी है कहते हुए, आपको भी इन्फॉर्म करते हुए, एंड आई थिंक यू एग्री विद अस कि ये डायरेक्ट कार्बन कैप्चर की जो टेक्नोलॉजी है, दैट टू एट नेगेटिव कॉस्ट, दिस इज ए एसेंशियल सोल्यूशन टुडे। Our government should accept it, they should analyze it, and they are analyzing it. I am firstly very thankful to the government, and I want to share this pleasant outcome with you, that Government of India, Ministry of Environment has issued a green credit program very recently, October 2003. They have included this technology in green credit program. Very good. That anyone using a system which cleans the environment will be given green credit. This is included in this program. Also, on our recommendation, recently the same Ministry of Environment has published a memorandum in which they have included this technology in carbon credit program, and by name it is included CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage. And this is the technology which is working on direct carbon capture, utilization in the form of organic manure, and storage also in the form of organic manure. So this is the simplest technology at a very economical cost which is available to India, and this is totally indigenous technology. And the ingredients, the inputs, the raw materials which are used in this technology are all available within India. There is nothing imported in this technology, and I have tried to use those types of raw materials which are available in abundance in India, or they are available as a byproduct of our Indian industries, or they are a waste from some of the plants. So I am using those materials as input raw materials in this technology, and by using them only I have been able to reduce this cost from crores to few lakhs. That's why it has been possible, and only India can do this because it is a farm based industry, agricultural based industry. I am having my family background from farmers. My family is a farmer's family. I am son of a farmer. My grandfather was farmer. So that's why any new innovation I do, I always think of farmers first. And on my recommendation, UP government has issued a notification now that all farmers in UP will get carbon credits. Oh, very good. Because in one of the conference in Muzaffarnagar, I told the press that farmers should get the green credit. They should get the carbon credit. Yes. Because what farmers are doing, they are growing crops, They are growing they are crops. growing trees and plants, Yes. and trees and plants are absorbing the CO2 from the environment, they are releasing oxygen. Yes. So They should get the carbon they are credits. helping us Yes. by default, in fact. So they should get the green credits. Yes. And the debit should go to the industries who are creating pollution. So fortunately it has been accepted in UP. UP is the first state government, and other state governments are following it now. I am told the government of Himachal Pradesh, government of Maharashtra even have taken this initiative, and government of Haryana is also taking this initiative to give carbon credits to farmers. So very soon in entire India, I think all states will have this. And we also have a proposal, just for your information, that next our device is being planned for farmers. The similar device what you see here, absorbing absorbing CO2 equivalent to 51 number of trees or 100 trees, will be given to farmers, and it will work on solar system, solar panel. They will use it in their fields. During the day their battery will be charged by solar power,
and at night this will absorb CO2 from their fields. Why at night? Because at night all crops, all trees and plants, they release the carbon dioxide. Yes. So collection of carbon dioxide will be done at night, batteries will be charged during the day, and our aim is to give this technology free of cost to farmers. Let farmers earn the carbon credit from the CO2 they absorb from their fields. Government support is required. I will request Government of India to give subsidy to farmers to buy this, or to give it free of cost to farmers. They will improve the environment. In fact, they will do the work of the government. It is the duty of our government to clean the environment. Yes. They are already doing it. In Delhi, I find a lot of efforts being taken by them. A lot of funds are being spent on pollution control. But I have sent some suggestions to use this technology. I am sure they will be able to reduce pollution in Delhi within next few months. I will tell you. Within next 6 months to 1 year, the pollution in Delhi can be drastically reduced if this bunkerman technology is used the way I have recommended to Government of India. Appreciate it. So with this, thank you very much. No, I And I really hope- appreciate. We really appreciate for your efforts and for your hard work you're doing for the not only for the common man but for the environment also. Thank you so much. Thank you. Thank you very much.